Hello everyone, welcome to Startup Academy. So in today's lecture, we shall be discussing about the policies from the month of October. So in previous lecture, we have covered or tried to cover about December and November. So today is for October 2025 and some of you are asking about these notes. So these notes are actually available on our Telegram channel. So you can just go and download the PDF and then you can remember all the points. Okay. Now, for today, the first thing that we shall be discussing about is the mission Atmanirbhar Bharat in pulses. Atmanirbhar Bharat in pulses refers to बहुत ही ज़्यादा इजी सा है, आपको समझ भी आ रहा होगा फ्रॉम द डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, जो कहता है क्या, मिशन आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस, मतलब हम क्या चाहते हैं कि हम पल्सेस के अंदर भी आत्मनिर्भर बन जाए. सो आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंस. वी आर ट्राइंग टू गेन व्हाट, सेल्फ डिपेंडेंसी. आवर ऑब्जेक्टिव विल बी व्हाट, self sufficiency in pulses by the year. You need to remember which time limit or the target year that they have been proposing according to the schemes or the policies that they are bringing continuously. Secondly is the production target. Production target is what, 242 lakh metric tons. LMT refers to lakh metric tons. ठीक है, तो how much we are trying to increase? We are approximately predicting the increase from 240 to 350. If you will not be able to mention or if you are not able to learn the exact terms, so there's a sign known as approximation sign. So this sign could be used as they have used over here. Okay. Now another thing that they are using are its key features. What are its key features? Assured procurement, quality of seeds, climate resilient varieties. What happens is there are the types of seed, and on their dependency they would be providing the different types of seeds which will be able to grow in different types of environment. It is not obvious that all the seeds would be growing. Obviously there are few seeds that would be able to pertain in the conditions that are provided to the provided to them, or climatically that would be resolvable or growable. ठीक है. Next, what are the ministries that are included? So Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is the ministry involved in what, in Atmanirbhar Bharat. Next is what is the relevance. In order to increase the points, what you can include about the food security. How you can include the food security? Food security will be the perseverance or the main point that could be included when you will be writing about the Atmanirbhar Bharat impulses. How food security? Since population is increasing every now and then, so everyone should get food. So in order to provide food to everyone, we are having the food security term involved over here. Then with the nutrition, we are using the best quality of seeds which will be directly related to the amount of the nutrition they would be providing. तो जब तक अच्छा खाना आएगा तभी तो आपको nutritious food it will be becoming. So only when you are using the good quality of foods, so a good quality of seeds will be providing nutrition, and such seeds will be the key features of Atmanirbharta in pulses. Atmanirbhar Bharat in pulses or Atmanirbharta in pulses. Atmanirbharta refers to self-dependency. You can write self-dependent. ठीक है. So next is MSP. MSP and import reduction is also there. It means those things that we are importing has to be reduced because we have a large population to serve. Therefore, things have to be things are coming inside. Instead of depending on other countries, what we should do, we should just limit our exportation and we should limit our importation as well, so that we can produce our own items as well. Yesterday we discussed about producing our rare earth elements like permanent magnets and so many elements that were very quite rare. So we had also discussed about producing them or producing their alternatives. So now we are discussing about the production of pulses. Next, we are moving on to the next scheme which says, okay, now we are moving on to the next scheme. For the next scheme, I hope this Atmanirbharta in pulses is clear to all of you. Food security, nutrition, and MSP. Okay, MSP is minimum supportive price. Minimum
supportive price. This will be given to the farmers from the government itself. Now we are moving on to the next one, which says PM Dhan Dhanya Krishi Yojana. Krishi refers to, again, who is Krishi? Krishi is none other than but your farmer. ठीक है, तो कृषि इज हु? कृषि इज योर फार्मर. ये योजना भी कृषि से रिलेटेड है, मतलब समवट रिलेटेड टू फार्मर्स ओनली. तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो जाएगा वो ज्योग्राफी में जा सकता है, ज्यादा नहीं तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में जा सकता है. कैसे? पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है? लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को ढूंढना है. पहले ऐसे डिस्ट्रिक्ट ढूंढने पड़ेंगे जहां पर प्रोडक्शन ही कम है. जब प्रोडक्शन कम होगा तो हम वहां पर, ताकि हम चीजें सप्लाई कर पाए, हम जान पाए रीजंस कि यहाँ पर प्रोडक्शन कम क्यों है. प्रोडक्शन कम होने के बाद वी नीड टू थिंक कि हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, और हाउ कैन वी try to alternate the changes so that we can bring in the productivity in that region. Next is coverage 100 low performing districts. Low performing districts का मतलब है ऐसी जगह जहां पर प्रोडक्शन का क्वालिटी या फिर प्रोडक्टिविटी सब चीजें बहुत ज्यादा कम होती है. तो they would be thinking about what? About 100 such regions or such districts. What are the key features? Key features is convergence of 36 schemes across 11 ministries. 11 ministries would be including, along with that 36 schemes with those ministries will also be implied. अगर वाटर से रिलेटेड है तो वाटर रिलेटेड स्कीम विल ऑल्सो बी देयर. रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिलेटेड है तो दैट मिनिस्ट्री विल बी इन्वॉल्व. डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो पब्लिक डेवलपमेंट सेक्टर्स विल अगेन बी इन्वॉल्व. तो सच थिंग्स विल हेल्प टू इंक्लूड मोर मेंबर्स, मोर मिनिस्ट्रीज, मोर फंडिंग एंड दस more productivity on that small area or whatever area that you are using. Now what we need to focus upon, क्योंकि धन धान्य योजना कृषि विभाग से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड आपको पहले इरिगेशन फैसिलिटीज और स्टोरेज फैसिलिटीज को ही आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा. इरिगेशन फैसिलिटीज रेफर्स टू द प्रोवाइडिंग ऑफ वाटर सप्लीमेंट्स, कि वाटर कैसे आएगा, विद द ड्रिप इरिगेशन यू वांट, कैनाल इरिगेशन यू वांट, और विच सॉर्ट ऑफ इरिगेशन यू वांट. कुछ स्टेट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के अंदर ऐसे होते हैं वेयर देयर इज वाटर इन, वाटर की जो सप्लाईमेंट होती है बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट होती है. तो उस चीज को मीट अप करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग द इरिगेशन फैसिलिटीज. अनदर थिंग दैट वी रिक्वायर फॉर सफिशिएंसी इज द स्टोरेज. देयर इज अ स्टोरेज प्रॉब्लम. व्हाट हैपेंस इज व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, देयर विल बी अ लार्ज डिस्ट्रक्शन इफ क्लाइमेट happens to change. So in order to prevent such large destruction on large pace or high pace, हमें स्टोरेज की फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा. Now this will help to development in rural regions. इरिगेशन के लिए अगर कैनाल्स बिल्डअप हो जाएंगे तो that will lead to upliftment of that rural area to semi-urban region it can become. Then is the productivity obviously will be increased and the governance involvement will also be there. What will happen with the government involvements? If the government will be involved, the funding will be collected. The funding will be collected and then eventually will have to be spent on the people living over there. So this is how one can progress. Now another thing is Namo Semiconducting Laboratory. Namo, again this question and the other question can both go to geography of yours. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेकर चलना फॉर योर ज्योग्राफी. ठीक है, क्योंकि जहां पर राबी क्रॉप्स के बारे में पूछा जाएगा तो देयर यू कैन मेंशन सच स्कीम्स. खारिफ क्रॉप्स के बारे में पूछा जाएगा, अगेन यू कैन मेंशन. आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कॉटन इतना कम क्यों उगाया जाता है, कॉटन इतने ही रीजन में क्यों उगाया जाता है. सच क्वेश्चंस कुड बी फ्रेम्ड ड्यू टू व्हिच यू कैन ब्रिंग अप सच स्कीम्स, ताकि आपको करंट अफेयर्स का रेलेवेंस मिल जाए एंड यू गेट टू नो हाउ टू फ्रेम योर आंसर्स. इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड ज्योग्राफी यू कैन इन्वॉल्व सच स्कीम्स. Only the relevant schemes are to be involved, not like they are asking about the development in the rural region and you are telling them that how you can grow crops. So that is not acceptable. ठीक है, so be relevant and be specific while writing your answers. Next is Namo Semiconductor Laboratory. Namo Semiconductor Laboratory इतनी रेफरेबल नहीं है आपके लिए बिकॉज ISS का एग्जाम है, तो it holds no reference, क्योंकि I have seen is no science questions are asked or hardly science questions are asked in your examination, but still it is there. So let us just give it a heed for small period of time, which says was indigenous semiconductor R&D and testing. normal testing के लिए किया जाता है और इसका जो लोकेशन है that is
where it is in IIT भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है ये. What is the focus? The design, testing, packaging, skill development. लोगों के पास जब तक औजार नहीं होंगे, they will not be able to develop the skills until and unless you are providing them the instruments or the technological field you are setting up. तो तभी डेवलपमेंट हो पाएगा जब आप टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करोगे या फिर आप उनको रीस्टार्ट कर दोगे तब. देन इज रेलेवेंस क्या लिख सकते हो? अगेन हमें आत्मनिर्भरता चाहिए. वी वॉन्ट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. हम नहीं चाहते कि हमें अगर जरूरत पड़ रही है किसी बंदूक की या फिर किसी और औजार की तो हमें जाना पड़ रहा है रशिया, या फिर हमें जाना पड़ रहा है यूक्रेन, या फिर हमें जाना पड़ रहा है चाइना, या फिर हमें फोन बनाने हैं तो वी शुड नॉट गो टू चाइना इन ऑर्डर टू गेट द आइटम्स. हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, मतलब जो भी अवेलेबिलिटी है वो सब इंडिया के अंदर है. वी शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू कलेक्ट द आइटम्स. इंस्टेड मेनी कंट्रीज शुड स्टेप इन इंडिया इन ऑर्डर टू कलेक्ट द आइटम्स. तो वी वांट दैट. तो बेसिक गोल वो है. तो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी हो जाएगी, तो दैट विल आल्सो बी अगेन ऑफ ग्रेट हेल्प. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, we have the another one which says this. Okay, digital monitoring and monitoring of rural water and sanitation. This is quite important, again referable to your geography question. ज्योग्राफी में आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे हिस्ट्री में भी ये पूछा जा सकता है कि बताओ वैदिक पीरियड के दौरान या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जितने भी सारे चेंजेस आए थे, those changes how could they refer to such new policies? So that could again be referred, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिटेशन का मामला है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड है. मोस्टली इट इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, ड्यू टू विच देयर इज अ कोर रेफरेंस टू this policy as well. Now they are saying digital monitoring. Digital monitoring refers to, again, you are digitalizing India. So digitalizing India is the basic and the most prominent scheme that is on the high pace it is working. तो उसी से related there's one scheme which says what? Digital monitoring of rural water and sanitation. Objective क्या होगा? Real time monitoring of जल जीवन मिशन. जल ही जीवन है, हम कितने सालों से सुनते हुए आ रहे हैं जल ही जीवन है. अब उसका मॉनिटर किया जाएगा. Where water is being produced more, not produced, actually used more, or where water is being wasted, high level of wastage, low level of wastage, that can again be done via AI system of yours, which will tackle the situation or the problem that the government is facing, that from where the water consumption is large amount, from where the water consumption is least, or from where the water consumption is quite moderate, or where the water is being seen on the floors, or where people are using water or de-using water. So such things could be just monitored by using certain apps. Thus this is only known as digital monitoring. Now implementing bodies, जो bodies involved हैं are these DDWS and BISAGE-N. What will be the tools that you would be using? Analytical tools will be there. Analytical tools वो tools होते हैं जो सीधा कह सकते हैं कि अप्लाई करके that thing could be just taken out. ठीक है, तो जैसे कि एनालिटिकल टूल्स हो गए तो दैट यू कैन यूज, या फिर जियो टैगिंग. जियो टैगिंग रेफर्स टू जहां पर भी, जैसे कि अर्थक्वेक के लिए वी यूज सीमोग्राफ, दैट इज जियो टैगिंग टूल. जियो टैगिंग रेफर्स टू आपने यूज करना है रेफरेबल टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, और उसी से रिलेटेड इट विल बी हेल्पिंग यू. जैसे कंपास होता है तो डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया, तो वो सब जियो टैगिंग टूल्स होते हैं. तो उससे क्या होगा, वो आसपास का एनवायरनमेंट देखेगा, वो उसके अंदर कुछ सेंसर्स फिट होंगे, दैट विल बी हेल्पफुल to the government in order to tag where the water wastage is more, or where the water utilization is more, or where the water is less in supply, or where the water is more in supply. Like that you can tag such things. Then we have the relevance. Relevance is again e-government we are making, that is we are making what? Digitalizing India. India is being digitalized. तो बस यही सीन है इसका, ठीक है. नेक्स्ट इज रिवाइज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी. सब्सिडी, रिवाइज न्यूट्रिएंट बेस्ड. अब आपने सबको सुना होगा लेते हुए कि सब्सिडी है, या फिर आपने राशन देखा होगा, राशन कार्ड, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड राशन. ये थोड़ी थोड़ी राशन से रिलेटेड है. अब राशन इज प्रोवाइडेड टू एवरी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. तो जो लोग बहुत ही ज्यादा लेवल से थोड़े कम हैं, दोज हु हैव वेरी लेस फैसिलिटीज टू हैव गुड न्यूट्रिशियस फूड,
So for them the ration facility is there. So something related to that scheme we have, which says what the objective is to promote balanced fertilizer use. They are saying revise nutrient based subsidy. That means जो fertilizers you are using, they are quite based upon यूरिया से रिलेटेड होते हैं या फिर नाइट्रोजनस बेस से रिलेटेड होते हैं. नाइट्रोजन दे हैव, फॉस्फोरस दे हैव. तो ये जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जितनी ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर फार्मिंग और इंक्लूडिंग द फर्टिलाइजर्स, तो ये चीजें जब तक आप इंक्लूड नहीं करोगे फर्टिलाइजर्स के अंदर, दे वॉन्ट बी ऑफ ग्रेट हेल्प. उसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन रहता है कि आपको इतना नाइट्रोजन और इतना फॉस्फोरस या फिर इतना पोटेशियम चाहिए रहता है. एनपीके सिस्टम वी यूज, वी कॉल देम एनपीके सिस्टम. एन रेफर्स फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम. तो ये सिस्टम क्या करता है, जब तक आपको स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं पता है कि फर्टिलाइजर के अंदर 70% नाइट्रोजन चाहिए, 30% हमें फॉस्फोरस और इसका पोटेशियम का चाहिए, बट इन सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रेशो, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो वो बैलेंसिंग करने के लिए द गवर्नमेंट वुड बी प्रोवाइडिंग अ सब्सिडी जिसको यू कैन बी यूज. अब ये सब्सिडी खाली यूज की जाएगी राबी क्रॉप्स के लिए. अगेन अ रेफरेबल टू योर ज्योग्राफी क्वेश्चन. ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर अगर आपसे राबी क्रॉप के बारे में पूछा जाता है तो दे माइट इवन आस्क कि बताओ एनबीएस सब्सिडी से इसका क्या रिलेशन है. तो पहले यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि राबी क्रॉप्स होते क्या है, एंड नाउ देयर इंप्लीमेंटेशन इज 2025 टू 2026. ठीक है, देन इस सब्सिडी की आउटले कितनी होगी, तो दिस करोड़. नो नीड टू रिमेंबर दिस टर्म बिकॉज बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है. अब रेलेवेंस क्या है, यू आर जस्ट इंप्रूविंग द सॉइल हेल्थ. सॉइल हेल्थ कैसे, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स सारे सॉइल से निकल चुके हैं, इन ऑर्डर टू रिपेलिश दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल बैक सो दैट द सॉइल इज अगेन बिकमिंग प्रोडक्टेबल. तो वही काम होता है. तो सॉइल की जो हेल्थ है दैट यू आर इंक्लूडिंग. एग्री इनपुट प्राइसिंग, एग्री इनपुट प्राइसिंग मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जितना भी प्राइस दैट यू आर इन्वेस्टिंग, दैट इज ब्रिंगिंग आउट द ग्रेट सम एंड द प्रोडक्टिविटी इज अगेन वेरी हाई. ठीक है, तो सच थिंग्स आर ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट. देन वी हैव डिजास्टर रिसाइलेंस प्रोजेक्ट. बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर डिजास्टर की भरमार होती है, लाइक कहीं पर भी कैसे भी डिजास्टर जो है वो आपको आके देखने को मिल सकता है. तो अब ऐसी चीजों के लिए क्या किया जाए, तो दैट इज अगेन अ बिग थिंग. तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. जो कहता है क्या, डिजास्टर रिसाइलेंस. डिजास्टर रिसाइलेंस के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है. I hope the screen is visible. ठीक है. नाउ डिजास्टर रिसाइलेंस प्रोजेक्ट्स मतलब जितना भी डिजास्टर का रिस्क है, अब डिजास्टर हो जाते हैं, दे आर नेचुरल, वी कैन नॉट प्रिवेंट देम. ठीक है, बट उनका जो कैलेमिटीज होती है, जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, उनसे बचना इज वेरी कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहां पर लाइव्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, प्रॉपर्टी आई एम नॉट सेइंग बट द प्लेस वेयर द लाइव्स आर इंक्लूडेड, तो दैट थिंग बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो उसके लिए क्या होता है, आपको डिजास्टर का जो रिस्क है दैट हैज टू बी रिड्यूस. अब आपको पता ही होगा कि डिफॉरेस्टेशन या फिर मोर ऑफ द मूविंग ऑफ द पीपल या फिर जितनी पॉपुलेशन आ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ऑल सच थिंग्स आर बेसिकली द डिजास्टर कॉजिंग इम्पैक्ट. तो अगर हम उन चीजों को ही रिड्यूस कर देंगे तो द डिजास्टर रिस्क वुड बी अगेन रिड्यूस्ड. देन इज द क्लाइमेट अडेप्टेशन. क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए देर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स, लाइक बाढ़ आ गई है. ठीक है, अब कुछ रीजन ऐसे होते हैं, दोज हु आर फेसिंग द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड सम आर एक्सपीरियंसिंग द फ्लड. दैट इज अगेन अडेप्टेशन. तो पीपल डू अडेप्ट, they become habitual to the things or the surroundings, but it will take time. So adaptation regarding the environment is quite necessary. So this scheme will help in disaster resiliency, that is the disaster reduction. Approved amount, अब उसको जितना amount दिया गया है, because every scheme requires funding in itself, due to which the scheme needs to function, and accordingly according to the budget only they would be moving ahead. अब बजट से कैसे मूव किया जाएगा, supposedly you are having 100 rupee in your wallet, so you would be spending wisely only, and if you would be having the unknown amount, so how can you spend? So that is why the amount is quite specified. No need to remember such amounts. Next is
क्या क्या कंट्रोल करेंगे? फ्लड कंट्रोल किया जाएगा और वेटलैंड को रिस्टोरेशन किया जाएगा। वेटलैंड्स का मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगेन दिस क्वेश्चन कैन अराइव इन योर ज्योग्राफी कि बताओ इंडिया के अंदर कितने कितने वेटलैंड्स हैं, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, वेटलैंड्स होते कैसे हैं, उनके फायदे क्या होते हैं, और इनको प्रिजर्व करना इतना जरूरी क्यों है, या इनको डिस्ट्रॉय करना इतना ज्यादा क्यों बढ़ चुका है। तो दैट हैज टू बी टेकन। और यूपीएससी का रेलेवेंस जो है वो है क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट से, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि मैंने आपको बताया कि साइंस से रिलेटेड आपका नहीं आएगा, बट सिंस डिजास्टर मैनेजमेंट इज समवॉट रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑफ योर्स, तो इट कैन कम। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हैज टू बी डिस्कस कि कहीं पर बाढ़ आ गई है तो हाउ कैन पीपल बी प्रोटेक्टेड, या फिर कहीं पर अर्थक्वेक आ गया है तो हाउ कैन पीपल बी प्रोटेक्टेड। देयर आर सर्टेन रीजन्स व्हिच आर प्रोन टू सच थिंग्स या फिर सच डिजास्टर्स, तो दोज थिंग्स हैव आल्सो टू बी considered. Next, we are moving on to the V Rise initiative. V includes everyone, including the women and the children. तो V, W for V and W for women. तो women का major portion जहाँ पर women को ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, तो कुछ ऐसी स्कीम होगी या फिर ऐसा इनिशिएटिव होगा। ये कहता है क्या? वुमेन जो एंटरप्रेन्योर वुमेन है, जो वुमेन बिजनेस के अंदर आ गई है, उनको अलग से सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सारे एंटरप्रेन्योर वुमेन को सपोर्ट करने के बहुत ज्यादा काम आएगा। अब इसके लिए जो पार्टनर्स होंगे वो होगा नीति आयोग और डीपी वर्ल्ड। नेक्स्ट अनदर थिंग इज सपोर्ट सिस्टम उसका मेंटोर कर देंगे, ट्रेड की एक्सेसिबिलिटी दे देंगे, तो दोज थिंग्स आर क्वाइट रिक्वायर्ड। फंडिंग इतनी नहीं दी जाएगी, बट ट्रेड एक्सेसिबिलिटी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट while you are in entrepreneurship, so those things will be again be helpful, therefore V Rise initiative is there. Also इसी से रिलेटेड एक और इनिशिएटिव था जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप या फिर नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको सपोर्टिंग के लिए, या फिर उनके जो स्टार्टअप सिस्टम थे उनको सपोर्ट करने के लिए जो लाया गया था, दैट कैन ऑल्सो बी रेलिवेंट, बट क्योंकि वो थोड़ा पुराना है और ये थोड़ा नया था, अक्टूबर बेस्ड था, तो आई बॉट अप दिस। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन इसी से रिलेटेड कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है या फिर MSMEs क्या होते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड आप बता सकते हो कि कैसे कैसे जो सिस्टम्स हैं हाउ दे आर वर्किंग और हाउ एंटरप्रेन्योरशिप कैन हेल्प all of us to evolve or have a face a great rise like that. Then is Kapas Kranti mission. Kapas refers to what? Cotton of yours. कपस का मतलब होता है कॉटन, तो इसका मतलब क्या है? जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी है दैट हैज टू बी इंक्रीज, सिंस वी आर हैविंग और फेसिंग सो मेनी सीजन्स व्हिच आर majorly summers in all, so we are using cotton on high base. High base refers to high utilization. High utilization means high productivity has to be there. So in order to boost all these productivities, हमारे पास एक मिशन है या फिर एक स्कीम है या फिर गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम ला कर दी है जो कहती है क्या? कपस क्रांति मिशन। इसका जो बजट है वो आप इसका बजट आपको याद करना पड़ेगा, विच इज 600 crore rupees। आपको बताना है वेदर कॉटन इज राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रेफर्ड टू ग्रो cotton. These are the two questions that are to be answered by you, not on WhatsApp. Many people answer on WhatsApp only now, since these are only tick mark questions and one liner questions or one word questions, तो आपको बताना है comment section के अंदर ही। Okay, we are moving on to the next, which is the modern agri-tech and the market linkage. Market linkage कैसे होगा? आउटर मार्केट सिस्टम के अंदर जब ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, तो कॉटन का मार्केट बाकी सब सिस्टम से भी तो यूज हो सकते हैं, लाइक यू कैन यूज इट। बहुत सारे कॉटन के वर्क्स होते हैं जहाँ पर कॉटन एज अ क्लॉथ की जगह पर कॉटन इन वेरियस फील्ड्स आर आल्सो यूज्ड, तो दैट कैन बी अ मार्केट लिंकेज, फर्स्ट थिंग। Secondly, if the productivity is quite high, that we can export it as well, so that will again be international linkage of the market. So boosting up our productivity will lead to promotional activities inside India and outside India in both the ways. Then is the agricultural innovation. Agricultural innovation refers to what? We are innovating with the new ideas and boosting up our productivity by taking different measures. So that is nothing. Next is model youth gram sabha. यूथ का इन्वॉल्वमेंट अगर ग्राम सभा के अंदर कर दिया जाए या फिर विलेज पंचायत एंड ऑल के अंदर कर दिया जाए, तो दैट रेफर्स टू नथिंग बट मॉडल यूथ ग्राम सभा। इसी सभा को
इसी पॉलिसी को रिलेट करने के लिए हमारे पास जो थी वो थी ये वाली स्कीम भी क्या करती थी, ये लोअर लेवल से लोगों को लेकर आती थी एंड इन ऑर्डर टू गैदर और फॉर्म मोर public from the lower levels. Lower level refers to the gram, the panchayati raj, the village panchayats and all those things. तो वहां से लोगों को लेकर आया जाता था what up till state so that they can refer, they can tell their things in the state as well or in the state government as well. तो उसी चीज को रिलेट करती थी बट क्योंकि वहां पर यूथ का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था तो यूथ के लिए एक अलग से स्कीम लेकर आई गई जिसको बोलते हैं क्या, मॉडल यूथ सभा. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यूथ का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस के अंदर कराया जाएगा क्योंकि यूथ ही है जो बेसिकली डिपेंड करता है या फिर दैट बेसिकली डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया. Next, we have the simulated Gram Sabha sessions would be created so that simultaneously people could be involved, and with their involvement further decisions could be made and further measures could be taken. Then is Panchayati Raj and democracy. You can answer them via polity. So this question belongs to your polity section. So this is how you can involve your answers, you can expand them, you can write them, and this is how you can involve the schemes in your current affairs or current affairs in your polity, and everything is interlinked. So this was all for October session. Tomorrow we shall meet up with the new session. Thank you and keep watching.